it can be any foreign language, so it is a plus point for you. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. My name is Sejal and I work as a flight attendant. So after seeing the thumbnail, you must have understood that this video is going to be all about the eligibility criteria of becoming a cabin crew. So if you want to know everything in detail, make sure you watch this video till the end. So without any further delay, let's get straight into the video. सबसे पहले हम जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एज क्राइटेरिया। तो आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स से 27 ईयर्स के बीच में। एज अ फ्रेशर, इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन इंडिगो एयरलाइंस, यू हैव टू बी इन बिटवीन 18 to 27। तो अगर आपकी 18 साल हो गई है और अगर आप 27 साल से छोटे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो सबसे पहला चीज़ जो आता है, आपको अपना क्लास 10th और 12th रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू हैव द मार्कशीट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो क्लास 10th और 12th का मार्कशीट आपसे मांगेंगे एंड यू हैव टू शो इट टू देम। Now we will be talking about the most asked question, which is the height and weight criteria. तो cabin crew बनने के लिए weight criteria तो नहीं है, बट आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए एंड आपका वेट आपके हाइट के साथ प्रोपोर्शन में होना चाहिए, which is we call body mass index. तो आपका जो BMI है, it has to be in between 18 to 22. 18 से 22 के बीच में आपका BMI होना चाहिए. Next point is your eyesight has to be 6/6. And if it is slightly less or more than that, you have to wear contacts. Try not to wear specs during the interview and during flying also आप Indian Airlines में specs नहीं पहन सकते हो. It is not allowed. So you have to wear contacts and you have to be prepared कि आपकी जब 12 घंटे की 14 आवर्स की शिफ्ट होगी, फ्लाइंग होगी, तो आपको contacts में ही काम करना है. तो make sure you are comfortable in wearing contact lenses, and if your eyesight is 6/6, then you're good to go. And make sure you don't appear for the interview wearing specs, because it is not allowed. There are chances that you might get rejected because of that, so make sure you wear contact lenses if your eyesight is not 6/6. Now I'll be talking about one of the most important points, which is having tattoos on your body. So अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी टैटू है, then it is not a matter of concern unless and until it is visible after wearing the uniform, indigo uniform. तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर वो टैटू विजिबल होता है, then there is 100% chance that they will not going to select you. तो अगर आपका ऐसा कोई भी टैटू है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ टैटू ऑन योर रिस्ट, तो जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तो वो विजिबल है, तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं. So make sure when you're going for the interview, if you have any visible tattoos on your body, then make sure you get a laser treatment before that, because high chances will be there that they will not select you just because of the visible tattoos. अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में. तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ फ्लुएंसी. तो आप हिंदी बोल रहे हो या इंग्लिश, आपकी फ्लुएंसी टॉप नॉच होनी चाहिए. आप बिना अटके इंग्लिश आपको आना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आने से हो जाएगा. यू हैव टू बी फ्लुएंट इन हिंदी एज़ वेल. सो यू हैव टू नो 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, विच इज़ इंग्लिश एंड हिंदी. इन दोनों लैंग्वेजेस में इंटरव्यू ली जाती हैं. If they can sense that your Hindi is not good, they are going to ask you questions in Hindi as well. ऐसा होता है. So make sure you know both the languages fluently. And trust me, I have seen people getting rejected because they don't know Hindi properly. They cannot speak Hindi properly. उनको English तो बहुत अच्छे से आती है, बट वो हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसके लिए भी rejections होती हैं. तो बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यू, मेक श्योर यू कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और इसके साथ अगर आपको एडिशनली और भी लैंग्वेजेस आती हैं, इट कैन बी एनी रीजनल लैंग्वेज, इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज, इट कैन बी एनी फॉरेन लैंग्वेज, तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू. तो मेक श्योर आप उस चीज़ को मेंशन करो अपने बायोडाटा में, अपने CV में, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर. आज के टॉपिक का लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू हैव टू हैव अ इंडियन पासपोर्ट. आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, लास्ट फाइनल जो राउंड होता है, वहाँ तक जब आप क्लियर कर लेते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं वो है आपका इंडियन पासपोर्ट. तो आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए.
और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए हो, मे बी आपने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है बट वो अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज शेयर विद देम द रिसीट, द कॉपी ऑफ द रिसीट दैट आई हैव ऑलरेडी applied for it. So if you are planning to join aviation, if you are planning to become a cabin crew, you have to have a Indian passport, तो make sure you apply for it as soon as possible अगर आपके पास नहीं है तो. I hope you found this video helpful, and if you did, do not forget to like and subscribe to this channel. मैं आपसे फिर जल्द ही मिलूँगी एक नए और टॉपिक के साथ. Till then, take care of your health, take care of your skin. Bye.